السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے، خاص طور پر حافظ صاحب کا اور وائٹ بورڈ کارنر کے تھنک ٹینک کا، جنہوں نے یہ ایفرٹ شروع کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا اسٹیپ ہے اور ہم سب کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے، اور اس لیے میں بھی حاضر ہوں. یہ رینوویشن کی وجہ سے پہلے نہیں آ سکا، اور ورنہ کئی دفعہ ہم نے شیڈیول کیا، بٹ امید کرتا ہوں کہ بعد میں بھی پھر انشاءاللہ آئیں گے. آج کا جو ٹاپک جس کا انتخاب کیا یہ بہت ہی پریلیمنری ہے، بہت بیسک ہے. آپ لوگ سب لوگ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے وکالت کر رہے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ بہت بیسک بات ہے، لیکن لیگل ریزننگ جو ہے اٹس آل اباؤٹ ایک اسٹرکچرڈ، ایک لاجیکل طریقے سے سوچنا، اپنا کیس تیار کرنا، چیزوں کو سمجھنا اور پھر ان کو پریزنٹ کرنا. ہمارے ہاں جو لیگل ایجوکیشن کا طریقہ کار ہے یا رواج بھی رہا ہے، اس میں اس طرح کی اسٹرکچرڈ لرننگ نہیں ہوتی تھی. اب کچھ اداروں میں ہو رہی ہے. تو ہم نے جو سیکھا اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن میں نے کی، بٹ میں آپ کو اپنا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے ہی اختراع ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مجھے میرے اساتذہ نے سکھایا اور تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو بیسکلی ایک وکیل جو ہے، ینگ اینڈ اولڈ کوئی بھی، وہ کسی طرح کا بھی کام کرے، چاہے وہ اوپینین ورک کرے یا وہ کیس پریپریشن کے حوالے سے کام کرے، کوئی ایڈوائزری کام کرے، جیسے بھی اس کو ایک بیسک کچھ اسٹرکچر ہے اپنے آرگیومنٹس کو اکٹھا کرنے کا اور پریزنٹ کرنے کا. اس سلسلے میں ایک رول جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کی ویریس فارمز یا اسٹائلز آلریڈی دنیا بھر میں ایگزسٹ ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ اب ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو اس بیسس پہ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ رول اس کو میں نے ماڈیفائی کر کے کہہ دیا ہے فراق. تو میں اس کو امریکہ میں آئریک کے نام سے کہا جاتا ہے اور ہمارے، لیکن میں نے اس میں یہ ایف کی ماڈیفیکیشن انٹروڈیوس کیا فراق، اور میں نے اس کو اپنا ادبی ٹچ بھی تو اب یہ فراق کیا ہے؟ یہ ایک اسٹرکچرڈ لیگل تھنکنگ کا میکنزم ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی کیس، کوئی سائل آئے گا تو پہلی چیز کیا ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں؟ دیٹ از فیکٹس. کوئی چیز وداؤٹ فیکٹس نہیں ہو سکتی. تو جب بھی آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی ہوا کیا، تو وہ آپ کو ایک نریشن آف فیکٹس دیتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا فیکٹس. دوسری، میں اس میں آگے جا کے تفصیل تھوڑی سی اور بیان کروں گا ایک اس میں، لیکن میں آپ کو بھی پریزنٹ کر دوں کہ یہ ہے کیا. جب آپ فیکٹس جان جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک چیز ایمرج کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایشو. کیا آپ کے پاس آپ کا سائل، آپ کا کلائنٹ کیا مسئلہ لے کر آیا؟ وہ جو ایشو ہے وہی کوڈ بیسکلی کنسرن آپ کے پاس لے کے آتا ہے، لیکن وہ ڈیوائڈ آف فیکٹس نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اپریشیٹڈ ان اے سرٹن سیٹ آف فیکٹس. جب وہ آپ کے پاس ایشو لے کر آتا ہے تو بحیثیت وکیل جب آپ کے پاس وہ آیا ہے، اب ہم کوئی کاؤنسلر، سائیکالوجسٹ تو نہیں ہے نا، ہم تو وکیل ہیں. سو ہمارے پاس جب وہ لے کر آیا ہے تو ہم نے ان فیکٹس کو، اس ایشو کو ہم نے کس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، یہ میں نے چھوٹا کر دیا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے ریلیونٹ لا میں. سو فیکٹس آئے، ہم نے اس میں سے ایشو دیکھا اور پھر ہم نے اس کو پلیس کیا ریلیونٹ لا میں، کہ کون سا لا ہے جس میں وہ ایشو، یا کون کون سے لاز ہیں جو اس پہ امپیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھنے کے بعد پھر آپ کو اور میرا اصل کام شروع ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از اے.
A is analysis. जब आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं एंड देन जब आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है? दैट इज द कंक्लूजन. सो मैं ये समझता हूँ कि हमें जब ये चीज़ सिखाई गई तो ये बहुत अहम थी कि अगर हम अपनी थिंकिंग, अपनी रीजनिंग को इस तरह या इससे मिलते जुलते अंदाज में स्ट्रक्चर करें तो ये हमारी केस प्रेपरेशन, हमारी केस प्रेजेंटेशन, हमारे क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड इश्यूज भी बेहतर होगी. अक्सर जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप सुनते हैं बैठ के और आपके जहन में बात आती है कि यार ये जज्बात ज़्यादा है, हकाइक और जज्बात में बड़ा फ़र्क है. सो गोइंग बैक टू द फैक्ट्स, जब भी आपके पास, अब ख़ास तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मैं किसी एरिया ऑफ लॉ को मिनिमाइज़ या वो नहीं कर रहा. कुछ ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर हम इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, लॉयर्स भी और हमारे लिटिगेंट्स भी. फैमिली लॉ इज़ वन एरिया, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है कि भी ऐसे किया, वैसे किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो बहैसियत लॉयर आपने जो अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स है वो कर रहे हैं. होने के लिए वो वॉइस नहीं आ रही, तो वहाँ से वो मैसेज आ रहा है जो ऑफिस में जो डाला है उसके. वो देखिए वो वाला ये पीछे भी आ रही. मैं ज़्यादा ऊंचा इसलिए भी नहीं बोल रहा कि वो लोग काम भी कर रहे हैं ना, फिर वो कहेंगे ऊंचा बोल. सो वेरी ब्रीफली, फैक्ट्स, इशू, रेलेवेंट लॉ, एनालिसिस और कंक्लूजन. अगर आप अपनी लीगल रीजनिंग, थिंकिंग, केस प्रिपरेशन के हवाले से ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहन में रखेंगे तो ये ना सिर्फ हमारे लिए, जिस तरह मैंने कहा, केस प्रेजेंट करने में, समझ करने में और आगे समझाने में आसानी रहेगी, बल्कि क्लाइंट्स को भी. सर अभी दरवाज नहीं आ रही. अच्छा, तो अता भाई इसको उतार दें, इसके बगैर ही चल जाएगा. आवाज़ सर की सही है. एक मिनट, आप किधर छुपे हुए थे? आप भाई नहीं सर, नहीं छुप सकता है. आप चेक करें, उनसे पूछें. यूट्यूब पे लाइव भी जाता है ना ये. बोले नहीं ठीक है. अब आ रही है आवाज़? सर ये कॉलर है, ये काट दे, वाले काटने का सर वैसे माइक हटा दें, बेहतर आवाज तो. और आपके लिए थोड़ी है, उनके लिए जवान देखते हैं फेसबुक पे. उनको सर आप उनसे पूछ ले कि आवाज आ रही है. कुछ है, आ जाता है कोई मैसेज. चलिए देख लेंगे, जब आए तो प्रॉम्प्ट करते हैं हम, थोड़ा सा कर देंगे. वरना ओपन अब फैक्ट्स में जो नाउ इज गुड. बहैसियत लॉयर जो मैं आपको चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि आप सब कानून शहादत ऑर्डर से, एविडेंस से हमारा जो लॉ है उससे बात है. उसमें बहुत दो अहम चीज़ें. आपने फैक्ट्स जब सुनने हैं तो आपने उसके बाद क्या चीज़ डिटरमिन करनी है? रेलेवेंट फैक्ट. और उसके बाद अच्छा, रेलेवेंट फैक्ट पे आप, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल फैमिली कॉन्टेक्स्ट में दिया, बहुत जज्बात हैं, बहुत इम्प्रेशंस हैं, बट आपका काम है कि आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेनी है. आप रेलेवेंट और इररेलेवेंट में फ़र्क आपको जानना है. तो ये बहुत अहम है कि आप जब भी फैक्ट्स को पढ़ें, देखें, तो आप इस नज़र से पढ़ें कि जी व्हाट इज़ रेलेवेंट टू द इशू, व्हाट इज़ नॉट रेलेवेंट टू द इशू. और यही वो फैक्ट्स हैं. देखिए, कवानीन तो हमारे 100, 150, 200 साल पुराने भी हैं, वही सेक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन हर दफ़ा नई जजमेंट आ जाती है, फैक्ट्स उसका इम्पैक्ट बदल देते हैं. फैक्ट्स ही से कंसिडरेशंस नई जन्म लेती हैं और उसके ऊपर फिर इंटरप्रिटेशन इश्यूज आते हैं. सो ये बहुत हमारी बड़ी जिम्मेदारी है बहैसियत वकील कि हम रेलेवेंट फैक्ट्स को इररेलेवेंट से डिस्टिंग्विश करें. अब जो मुझे तरीका सिखाया गया था व्हेन आई वाज अ यंग लॉयर, वो ये था कि जब भी, और हम कोशिश करते हैं आज भी ये करते हैं, और बड़े तंग हैं मेरे एसोसिएट्स मुझसे जो मेरे साथ जो काम करते हैं इस वजह से, कि जब भी कोई फाइल, जब भी कोई केस आता है
तो मैं उनसे कहता हूँ आप सबसे पहले तो एक फैक्ट शीट बना दीजिए. मुझे कोई कानून नहीं पढ़ना, मुझे कुछ नहीं करना, आप मुझे एक फैक्ट शीट बना दें. और फैक्ट शीट कैसे बनाएं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. 1 जनवरी को पैदा हुआ, 15 को ये हुआ, 1 फरवरी को ये हुआ, ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता लग जाए चीजें कब कैसे होती रही हैं. तो ये मेरा एक हमें जो तरीका सिखाया गया था. तो फैक्ट्स को रेलेवेंट और इररेलेवेंट को जानने के लिए हम एक फैक्ट शीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेट कर लेते हैं. हमें ये भी सिखाया गया था कि अच्छे वकील और नॉट सो अच्छे वकील में, क्योंकि वकील सारे अच्छे होते हैं, सो अच्छे वकील में और नॉट सो अच्छे वकील में फ़र्क ये है कि जो अपने केस के फैक्ट्स पढ़ ले और जान जाए, और जब वो रोस्ट्रम पे जाए, अगर वकालत कर रहा है अदालत में, या वो किसी ट्रांजैक्शन के हवाले से किसी मीटिंग सेशन में जाए, तो उसको फैक्ट्स अपने फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. और हमारे उस्ताद जो थे उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर तुमने अपने फैक्ट्स पे अबूर हासिल कर लिया तो यू विल बी इन द टॉप 10% ऑफ कॉम्पिटेंट लॉयर्स इन द कंट्री. उस वक्त हमें हंसी आती थी, क्या बातें करें, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकल लाइफ से जानता हूं कि कई दफ़ा हमने देखा है कि लोग फाइल ही नहीं पढ़ते. सो फाइल, अगर आप सिर्फ फाइल पढ़ लें तो आप ऑटोमेटिकली एक टॉप कार्डर में आ जाते हैं, और ये बाकी चीज़ें फिर आपको एक मजीद टॉप कार्डर में लेके चली जाती हैं. सो वी एज लॉयर्स, मेरी रिक्वेस्ट है, वी मस्ट रिमेन कमिटेड टू आवर वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फैक्ट्स रेलेवेंट और क्या है. अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के साथ एक बहुत अहम चीज़ है, और ये बड़ा बेसिक रूल ऑफ एविडेंस है. ये सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या है कि फैक्ट्स जो कि एडमिटेड फैक्ट्स हैं, दे नीड नॉट बी प्रूव्ड. ये बेसिक रूल ऑफ एविडेंस है. हमने उन चीजों पे वक्त ही नहीं जाया करना जो ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड. सो ये जो मेरा अप्रेजल है फैक्ट्स का, इट शुड, इफ यू कंसिडर, इट शुड प्रोसीड ऑन सच बेसिस कि मैं देखूं कि सारी चीज क्या है, मैं रेलेवेंसी आइडेंटिफाई करूं, और फिर मैं देखूं एडमिटेड फैक्ट्स क्या हैं, ताकि मैं उसके ऊपर अपना केस बिल्ड कर सकूं. अब इशू, अब जब आप अदालतों में भी देखते हैं, जब अच्छा ये जो रूल है ना, बाय द वे, इसको जजमेंट राइटिंग के हवाले से भी तस्लीम किया जाता है कि जब जजमेंट्स भी लिखी जाती हैं तो वो भी कुछ इसी स्ट्रक्चर के ऊपर लिखी जाती है. आप अगर अब आपकी नजर से जजमेंट गुजरेगी कभी, तो आप देखेंगे वो कहते हैं द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सो एंड सो, फ्रॉम द प्लीडिंग्स द फलाना इशू इमर्जेस. और सो बेसिकली ये जजमेंट राइटिंग के भी इससे मिलते जुलते है. उनकी अपनी जजमेंट राइटिंग के तकाजे हैं, वो जज साहब कोई बेहतर आपको बताएंगे, लेकिन जो हमने देखा है, तो ये बेसिकली, इसलिए ये लीगल रीजनिंग, स्ट्रक्चर्ड लीगल रीजनिंग का एक, मैं समझता हूँ, मुसद्दका तरीका है जो दुनिया भर में अक्रॉस द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है. अब जब हमारे फैक्ट्स, ये सारा हमने एनालिसिस कर दिया, तो फिर हमारे सामने इशू आ जाता है. अब इशू आप कोई सिविल का ले लें, आप किसी क्रिमिनल एस्पेक्ट का ले लें, आप किसी कमर्शियल का ले लें, फैमिली, जो भी आप ले लें, बट इशू विल इमर्ज टू यू. अब वो जो भी इशू है, इशू पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करता, बात नहीं करता, क्योंकि वो इट इज़ सच एन ओपन थिंग कि वो इन्हीं से इमर्ज होगी. बट ये हम सबको वाज़ेह है कि इशू क्या चीज़ है. इशू वो है जो क्वेश्चन हमारे सामने ओपिनियन के लिए या केस के लिए या जज साहब की डिटर्मिनेशन के लिए रखा गया है. ये एक से ज़ायद भी हो सकता है, ये इंटरकनेक्टेड भी हो सकता है. सो इश्यूज में जो आपने चीज़ कंसर्न करनी है, वो देखनी है कि द इश्यूज दैट इमर्ज आउट ऑफ द फैक्ट्स, उनकी भी प्लेसिंग या उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन आपने ख़ास किसी लॉजिकल बेसिस से करनी. ये नहीं हो सकता कि आप एक इशू के पहले डिटरमिन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे पास एविडेंस है कि कोई फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग हुई है. अब वो जो मेरी एविडेंस है उसका अप्रेजल का जो तरीका है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो वेरीफाइबल है, क्या वो मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी का क्या स्टैंडर्ड है, ये नहीं हो सकता कि पहले वो तय्यन ना हो और हम एक बहस में पड़ जाएं कि जी नहीं, आप पहले ये बताएं कि फलानी ट्रांजैक्शन कैसे हुई थी, ढमकान ट्रांजैक्शन कैसे हुई. तो आपको एक उनको इश्यूज को भी एक सीक्वेंस में देखना है. बट इशू से ज़्यादा आगे हम चलते हैं रेलेवेंट लॉ पे.
रेलेवेंट लॉ के दो बहुत अहम विंग्स हैं. एक है जिसको हम स्टैच्यूट लॉ कहते हैं और दूसरा है केस लॉ. अक्सर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से कवानीन हैं जो उस मैटर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं और हमें उन कवानीन का अप्रेजल करना होता है. बट आप और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखेंगे और जानते हैं कि हर चीज़ कई दफ़ा स्टैच्यूट की ज़ुबान में वाज़ेह नहीं होती. इसलिए हमारी एक बहुत लार्ज बॉडी ऑफ केस लॉ. तो आपका कोई रेलेवेंट लॉ का असेसमेंट मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप स्टैच्यूट लॉ जो कानून है और उसकी ऊपर जो जजमेंट लॉ है इसको आप इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे. कई दफ़ा तो ऐसा होगा कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ आपको स्टैच्यूट में मिलेगी और इलेबोरेशन आपको सारी केस लॉ में मिलेगी. सो हमारी रेलेवेंट लॉ की असेसमेंट में हमें स्टैच्यूट और केस लॉ दोनों को कंसिडर करना है. इस तरह हमारी जो अप्रोच है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आएगी. जब आप फैक्ट्स को, इश्यूज को, इस सारी असेसमेंट को सबको इकट्ठा कर लेंगे तो देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ एनालिसिस. इन अ वे जो मैंने आपको रेलेवेंट इररेलेवेंट की भी गुजारिश की है वो भी इस काइंड ऑफ एन एनालिसिस. बट यहाँ पर जो एनालिसिस हो रहा है ये कानून को सामने रखते हुए, इशू को सामने रखते हुए और जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए एनालिसिस हो रहा है. अब जब हम स्टैच्यूट्स की बात करते हैं तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ. हर स्टैच्यूट जो है वो एक डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज से शुरू करता है. मेरी नज़र से नहीं कोई कानून गुजरा जिसमें डेफिनेशंस या इंटरप्रिटेशन ना हो, क्योंकि वो उसका टोन और कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, आसानी के लिए आपको कॉन्सेप्ट देता है और क्यों करता है. सो आप अपना असेसमेंट उधर से शुरू करते हैं. मुझे जो एक तरीका सिखाया था मेरे थैंक यू सर असातिज़ा ने, एक कानून समझने का वो बड़ा डिफरेंट सा था और मैं आज तक उसी को फॉलो करता हूँ. जब भी मैं कोई नया कानून आता है तो मैं उसको पढ़ता तो सारा हूँ, लेकिन उसको सबसे पहले मैं उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स से शनासाई लेता हूँ कि ये जो कानून है इसका स्ट्रक्चर क्या है. और देयर इज़ अ रीज़न व्हाई स्टैच्यूट्स हैव अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो ये नहीं है कि वो दे इम्पैक्ट द मीनिंग एंड स्कोप, बट टेबल ऑफ कंटेंट्स बड़ी मज़ेदार चीज़ है कानून की. वो क्या करती है, वो आपको उसका स्ट्रक्चर समझा देती है. ये एग्जांपल कंपनी के कानून का फर्ज करें ले लेते हैं. वो शुरू होगा बेसिक डेफिनेशन से कि जी कंपनी के हवाले से ये डेफिनेशन है, इन चीज़ों का मतलब ये है. फिर वो बताना शुरू कर जाएगा कि जी अच्छा कंपनी के मामले की कोर्ट कौन होगा, इसको रेगुलेट करने के लिए अदारा क्या होगा, इदारे के कितने डिविजन्स वगैरह होंगे, फिर वो किन किन अमूर के ऊपर काम करेगा, तो उसका स्कोप क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उससे एलाइड. सो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो स्टैच्यूट है ये अचीव क्या करना चाहता है. So I have personally, even till today, found the table of contents to be a great help in understanding the structure, the broad structure of the law. ये नहीं है कि आपको उसे हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन मेरी हद तक मुझे लगता है कि वो. और जब आप स्टैच्यूट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसका पर्पस, ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन में भी फिर थोड़ी आसानी आ जाती है. और आप यही देखते हैं कि केस लॉ डेवलप इसीलिए होता है कि इन स्टैच्यूट्स में फैक्ट्स के सामने रखते हुए या दीगर मामलात में कई दफ़ा इंटर रिलेटेड चीज़ें भी हैं, वो क्वेश्चंस डिटर्मिन हो रहे होते हैं. सो हमारी केस लॉ की अंडरस्टैंडिंग इस स्टैच्यूट के स्ट्रक्चर और पर्पस ऑब्जेक्ट की मैं समझता हूँ काफ़ी मरूने मिन्नत रहती है. तो हमें चाहिए कि हम इस सारी एनालिसिस को सामने रखते हुए हर गिवन, और ये मैं आपको बताऊँ, ये हर चीज़ में जिस तरह मैं कह रहा हूँ, आप कोई केस ले लें, कोई, this broad principle will apply everywhere because it is about thinking in a logical, sequential, structured manner. ये नहीं हो सकता कि किसी केस में इनमें से कोई चीज़ मिसिंग हो.
तो थरो एनालिसिस विल रिक्वायर कि आप जितना डीपर अप्रिशिएट करेंगे इन चीज़ों को, द ग्रेटर द एनालिसिस. बट आप और मैं प्रैक्टिकली जानते हैं कि द क्लाइंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझसे को सबसे पेचीदा सवाल पूछे और मैं उसका 1 यस और नो में जवाब दूं और बड़ी सारी फीस ले लूं, और फिर मुझे पूछे क्यों, तो मैं कहूँ इसकी अलग फीस हो. क्योंकि ये जो काम है इसमें अक्सर लोग क्लाइंट्स नहीं, दे वांट टू नो कि क्या है. सो बट एनालिसिस इज ज़रूरी. अब उनको पैलेटेबल बनाने के लिए, उसको ईजिली समझाने के लिए इज व्हाट आवर कंक्लूजन इज. हमने सारा अपना एनालिसिस, हमने सारा अपना रेलेवेंट लॉ को जब कंक्लूड करना है, दैट इज व्हाट इज द कंक्लूजन. सो आपकी कोई थिंकिंग प्रोसेस में, कोई काम में जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपको लगेगा कि जो डायलॉग है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है या आपकी जो प्रेपरेशन है वो स्कैटर्ड है. इसको कलेक्ट करने के लिए ये बेहतर है कि आप इस या इससे मिलते जुलते किसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करें. वकालत में मुझे जो सबसे बड़ी खूबसूरती महसूस हुई है और लगती है वो ये है कि आपके पास फ्रीडम है. आप देखते हैं कि आपके सीनियर्स कैसे काम करते हैं, आप उनसे भी सीखते हैं और आप अपनी एक इनोवेशन भी कर लेते हैं कि यार ये काम मैं ऐसे बेहतर अपनी हद तक कर सकता हूँ. सो हरगिज़ ये मकसद आज की बात डिबेट या आज की लेक्चर का ये नहीं है कि आपकी थिंकिंग को ड्रास्टिकली कहा जाए कि आप गलत कर रहे हैं. नहीं, यू हैव फाउंड द वे टू डू थिंग्स दैट यू फाउंड बेस्ट. बट ये वो चीज़ें हैं जो एक वाइडर सेक्शन ऑफ लॉयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और लीगल एजुकेशन में इसी तरह लीगल रीजनिंग की ट्रेनिंग की जाती है. सो मैंने ये जान के खुलासा दिया है, आई एम विलिंग टू टेक क्वेश्चंस या आई एम विलिंग टू गो फॉरवर्ड. क्या आप कहते हैं? क्योंकि मैंने टाइम भी आधे घंटे 45 मिनट्स का सोचा था. आप बताएं. थोड़ा क्वेश्चन शुड बी एट एंड. अच्छा, एंड भी होना है. तो आप आगे नहीं, देखिए मैं समझता हूँ इंटरैक्टिव होगा ना, इसमें क्वेश्चन इंटरैक्टिव जो होगा ना तो ज़्यादा एंगेजमेंट. तो जैसे आप मुनासिब समझें. सर, इनका सवाल ये है कि लेक्चर सम अप हो चुका है तकरीबन. मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन दे दी. आई कैन कीप ऑन टॉकिंग, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप समझते हैं कि नहीं कुछ भी इसमें वेरिएशन होनी चाहिए तो हम आज मिलके एक बेहतर फार्मूला भी बना सकते हैं. ये किसी की मिरास नहीं है. इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग आवर माइंड्स. और जितने ज़्यादा तो बाहर आपने कहा था आईरेक है, आपने एफ डाला है, तो बाहर वालों. अच्छा, आई डोंट नो क्यों नहीं उन्होंने किया, लेकिन जब हम मौका हुआ, हम जब जो हमारे टीचर्स भी जो बाहर पढ़े, आप आजकल भी वो फॉर सम रीजन इसको आईरेक रूल ही कहते हैं. शायद वो फैक्ट्स को एज्यूम करते हैं कि जी फैक्ट ही से इशू नहीं होगा. बट मैंने ये मुनासिब समझा कि फैक्ट से बगैर तो कुछ होता नहीं. और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि केस प्रेपरेशन के हवाले से फेमिलियरिटी विद द फाइल इज़ एन इशू. सो हमें एम्फसाइज फैक्ट्स पे, और आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन फैक्ट्स कि हमें फैक्ट्स पता होना चाहिए. आई नीड टू नो द केस. चाहे आप किसी ट्रांजैक्शन में करें, बेशक लेट से आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कई दफ़ा बड़े लंबे टीडीएस होते हैं, बट आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ती है. और ये आमतौर पे लोग कहते हैं कि लोग इतने लंबे लंबे मुआहदे लिख देते हैं, लेकिन जब झगड़ा होता है तो उसमें लिखा ही नहीं होता. ऐसा भी होता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी असेसमेंट एनालिसिस में फैक्ट्स के साथ अपने आप को फेमिलियराइज ना करें. और अगर आपकी फैक्ट्स के साथ फेमिलियरिटी नहीं है, आपको रेलेवेंसी नहीं पता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है वो डिफिशिएंट ही रहेगी. आप देखिए ना, कितनी दफ़ा आप लोगों ने प्लीडिंग्स में देखा है कि ये आपने फैसला चैलेंज कर दिया, दिस इज अगेंस्ट द लॉ एंड फैक्ट्स ऑन पॉइंट, ये मिसरीडिंग ऑफ एविडेंस है, ये फलानी चीज़ हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड. वो क्या चीज़ है? वो फैक्चुअल असेसमेंट है. तो ये सारी चीज़ इंटरट्वाइंड है हमारे एडवर्सरियल सिस्टम के साथ, और हम इसलिए आई कीप ऑन एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट्स. ये जो कंक्लूजन है इसको अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि इसमें क्या अप्रोच ले बंदा और दावा तैयार कर ले. नहीं देखिए, रूल ऑफ प्लीडिंग की बात नहीं हो रही, ये हो रही है स्ट्रक्चर्ड. अब आप प्लीडिंग का आप समझते हैं कि प्लीडिंग का तो एक अपना कन्वर्ट करना है ना फाइनल स्टेज में. ये बेसिकली जब आप कंक्लूजन पर आ जाते हैं ऑन एनी इशू, देन दैट कंक्लूजन इज व्हाट यू विल परस्यू. अब फर्ज करें जिस तरह अगर हम अगेन कोई किस डिसिप्लिन का एग्जांपल ले लें,
कोई सिविल का कैसे, आरिफ साहब आप सिविल का बताएं, सीडीए के साथ तो साहब आप बताएं क्या करें, कोई केस स्टडी सैंपल किसका ले लें इसमें इसको अप्लाई करने की कोशिश करें? Spire up Pufuki ये लगता है मैम आपका वो केस आ गया है। अच्छा, क्या आपने उसको निकालना है? प्रोपोजिशन बताएं। चलिए फर्ज करें रोल प्ले कर लेते हैं। मैं आप लैंडलॉर्ड हैं, मैं आपका किराएदार हूँ। आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपने मुझे निकालना है, तो आप बताएं मुआहदे में क्या खिलाफ वर्जी हो गई, मैं रेंट नहीं दे रहा, आप वक्त से पहले मुआहदा कैंसिल करना चाहती हैं, आप इसलिए करना चाहती हैं कि रेंट मार्केट बढ़ गई है, रेंट ऊपर चले गए, मैं कम रेंट दे रहा हूँ, अब क्या आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें विल गो इनटू द क्वेश्चन। बिकॉज आप जब अपना केस बनाएंगी कि मुझे इविक्ट किया जाए तो उसकी कोई होगी, क्या मैं डिफॉल्टर हूँ, वो डिफॉल्टर है, फिर या आप कहेंगी कि जी ये जो कई दफ़ा ये भी होता है ना, मुआहदा री नहीं होता, पोजेशन, बिकॉज लॉ इज ऑल अबाउट पोजेशन एट टाइम्स। तो अब वो घर में बैठा हुआ है, निकल नहीं रहा, तो आपने उसको डिस्पोजेस ही एक तरह से करना है वहाँ से। तो आप जो भी ग्राउंड्स अपने बनाएंगी मेरी एविक्शन के लिए, मुझे उसको फिर दूसरी साइड उसको काउंटर करेगी, वो कहेगी कि मैं तो किराया देना चाहता हूँ, ये अनरीजनेबल है, ये ऐसे नहीं होता, हमने 10% का अग्री किया था, अब ये 25% चाह रही हैं, ऐसा नहीं है। सो ये इमर्ज करेगा। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने इस्लामाबाद की हद तक तो ये देखा है कि लैंडलॉर्ड फेवर करता है, लॉ जो है वो बड़ा लैंड लॉ को फेवर करता है। पहले शायद ऐसे नहीं होता था, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा है। तो अब 6 महीने में मैंने सुना है सर निकल जाते हैं। नहीं निकलते तो आप उधर राब्ता करें अगर नहीं निकलना। लेकिन इश्यूज बेसिकली यही हो गया, आप अपना लेकर आएंगी कि जी ये मेरा मुआहदा था, इसके मुताबिक इतनी इसकी मुद्दत थी, आपने मुझे ये किराया देना था, आपने मेरी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करनी थी, आपने प्रॉपर्टी डैमेज भी की है, लेकिन एनीथिंग गिव यू कॉज फॉर इट। अगर वो है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने उस ब्रीच को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने देखना है कि कानून के मुताबिक क्या वो जो ब्रीच आप अलेज कर रही हैं, इज दैट ए ग्राउंड इन लॉ फॉर यू टू सीक हिज एविक्शन। अब वहां पर आप अगर उसमें स्टैट्यूट पे चली जाएंगी, आपको कुछ चीजें पता लग जाएंगी, लेकिन फिर हो सकता है केस लॉ ने उसको फर्दर किया हो। फिर रेलेवेंट ये भी है कि क्या ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कई दफ़ा इस्लामाबाद में झगड़े ये भी होते हैं कि अनइंटेंडेड यूज है, आपने कहा कि जी मैंने रहना है यहाँ पर लेकिन दफ्तर बना लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स हैं और उसमें से फिर इशू इमर्ज करेगा वेदर और नॉट you have the right to have him evicted, और then you will appreciate कि जी हमारा रेंट रिस्ट्रिक्शन का जो कानून है उसकी कोई खास शिक है जो इसको डायरेक्टली अप्लाई करती है या नहीं करती। अब हमने कई केसेस रेंट के हवाले से किया। मैं आपको सिक्योरिटी का सबसे मेरे एक्सपीरियंस में सबसे होता है कि सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। जो जो टेनेंट है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं इसमें रहूं और सिक्योरिटी अपनी एडजस्ट करा दूं। लैंडलॉर्ड की ख्वाहिश होती नहीं, ये पहले निकले ताकि इसकी सिक्योरिटी से मैं बिजली पानी के बिल और तोड़ फोड़ एडजस्ट कर दूं। इसीलिए लड़ाई यही होती है ना। सो यू नीड टू अप्रेज दीज फैक्ट्स एंड देन डिसाइड वेदर यू विल गो फॉर एन एविक्शन और नॉट और रेजिस्ट इट। अब हमने रिसेंटली मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने एक केस किया जिसमें हुआ ये कि मुआहदा उसका जो मियाद थी ना वो ख़त्म हो गई, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, वहाँ कारोबार चल रहा है, लेट्स से बैंक है, अब वो नहीं जा सकता फॉरेन। तो बैंक की ख्वाहिश है कि जी वो उसको बढ़ा दे और वो कहता है नहीं मैंने नहीं बढ़ाना, तुम निकलो। तो बैंक ने कई हरबे इस्तेमाल किए। फिर उसको किसी ने ये कहा कि यार ऐसा करो तुम इसके खिलाफ मुकदमा कर दो कि ये असेसमेंट ऑफ रेंट जो है ना ये रेंट कंट्रोलर करे, तो इसमें आपको टाइम मिल जाएगा। अब वो ऐसा मैटर था जिसमें असेसमेंट ऑफ रेंट नहीं थी, बट उसकी शायद टैक्टिक ये थी कि उसने कहा कि जी किसी तरह मुझे 6 महीना साल मिल जाए। तो लिटिगेशन अनफॉर्चुनेटली इज मीन्स टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, नॉट ऑलवेज फेयर। सो एज ए लॉयर अब मैं किसी मॉरलिस्टिक पोजीशन पे नहीं जा रहा, लेकिन कई दफ़ा आपके पास ऐसे केस रेंट में भी आओ कहते हैं यार मुझे साल ले दो, तो फिर आप उस तरह केस लड़ते हैं। लेकिन हम उन सिनारियोज की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि कोई भी केस आ जाए, आपने उसको ऑब्जेक्टिव ओपिनियन तो सही देना है ना।
फिर स्ट्रैटेजी टैक्टिक वो बात की बात। सो ये वो बेस है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी एक रीजनिंग, एक थिंकिंग का एक आउटलाइन है। अगर आप ऐसे सोचेंगे, ऐसे देखेंगे, तो आपको आसानी होगी अगले की बात समझने में भी जो साइल है, और उसको समझाने में भी कि भाई ये जो आप कह रहे हैं ये हर दफ़ा दुरुस्त नहीं है, आप ये कानून है, इस पैराए में देखें और इसका हल ऐसे निकलेगा। सो दिस इज़ द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। कॉज ऑफ एक्शन तो मैम एक और फील्ड चली गई, वो तो आपको जी कॉज ऑफ एक्शन तो देखिए ना, वो कॉज है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आप आसान अल्फाज में डेफिनेशन शुरू हो जाएंगे कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि एक मैटर है जो आप अदालत के पास लेके जाएंगे और वो उस इशू को ट्राई करेगा, दैट इज द कॉज। सो इसमें वही कॉज भी एक तरह से चले क्या देखें। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने हमें टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया है, ये अगर हमने लीगल ओपिनियन भी देना है ना, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हो जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है जी, मैं यही कह रहा हूँ, चाहे आपने ओपिनियन देना है, बल्कि मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि जब भी एज लॉयर आपसे जब भी कोई एक्चुअली तो आपसे ओपिनियन ही मांगता है ना, कोई आपसे रिटन ओपिनियन मांगता है, कोई आपसे वर्बल ओपिनियन मांगता है। अगर आपने दावा करना है कार्रवाई अदालतों में करनी है तो प्लीडिंग्स का तकाजा और है, क्योंकि उसमें तो आपको पता है ना, वी रोड साइड लॉ। ऑल्दो हम आजकल देख रहे हैं कि अब एक रिवायत नहीं आ गई है कि लोग अपनी प्लीडिंग्स में केस लॉ भी लिखने लग गए हैं, वरना अगर आप सीपीसी के ट्रेडिशनल या अगर पुराने जो हमारे साथीज़ा थे, अगर उनकी वो कहते हैं प्लीडिंग का मतलब है स्टेट द फैक्ट्स। हाँ, अब हम देखते हैं कि लंबी लंबी प्लीडिंग्स बन रही हैं, उसमें जजमेंटें भी कोर्ट हो रही हैं, उसमें सेक्शन भी कोर्ट हो रहे हैं। पर चलिए, वो कई दफ़ा कुछ जज साहिबान हैं जो उसको एतराज़ भी करते हैं कि ये क्या कर रहे हो। सो वो एक अलग इशू है सर। ये हम यंग लॉयर को अक्सर अगर प्रीपोजिशन आ जाता है ना, तो वो रिलेवेंट लॉ स्पेसिफिकली स्टैट्यूट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इसके लिए कोई तरीका आप ला सकते हैं। देखिए, जो हमने जिस तरह मैंने कहा स्टैट्यूट रीडिंग के हवाले से, स्टैट्यूट को नहीं पहले सर, मतलब एक प्रीपोजिशन आ गया, एक इशू आ गया, चलिए ले कोई प्रोपोजिशन देखते हैं, कोई मतलब ये सर बैंक रिलेटेड कोई इशू है, रिकवरी करनी है, तो अब मुझे ये नहीं पता कि बैंकिंग लॉ अप्लाई हो रहा है या FIO अप्लाई हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी जो एक्ट है। देखिए, ये वी गो बैक टू द लॉ अगेन। जब आप स्टैट्यूट पढ़ेंगे तो वो आपको अपना स्कोप और ऑब्जेक्ट बताएगा, और ख़ास तौर पे वो एक मैकेनिज्म बताएगा कि ये इशू इस कानून के तहत जो इशू है ये इस ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। तो शुरू की जो लिटिगेशन रही है लेट्स से बैंकिंग में, वो हमेशा यही रही कि ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है, इसी में बहस चलती रही। तो अगर वो थी तो वो कहते थे हाँ आप जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिविल उसमें चले जाएं। तो ये वो इश्यूज हैं जो एक तो प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ से आएंगे, लेकिन कई दफ़ा जिस तरह बैंकिंग का आपने एग्जाम्पल दिया, बैंकिंग एक ज़रा स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया। अब उसमें एक यंग लॉयर के हवाले से या जिसको वो शनासाई नहीं रही है, उसके लिए कुछ टर्म्स समझना, उसकी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझना मुश्किल हो सकता है। दिस इज़ वेयर द केस लॉ कम्स इन। नाउ द केस लॉ, जैसे मैंने गुजारिश की, वो एड भी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैट्यूट में, और वो लेइंग डाउन न्यू लॉ भी है, क्योंकि हम जिस आईनी सिस्टम में रहते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट की एक वैल्यू है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या हम कह रहे हैं। तो केस लॉ का मतलब है प्रेसिडेंट कि जो अदालतों ने वज़ा कर दिया हो कानून। तो ये वो वही नुक्ता वज़ा करती हैं जो यहाँ पर वो समझती हैं कि बहुत वाज़े नहीं है। अब जुरिस्डिक्शन एक ऐसा इशू है, फॉर एग्जांपल हर केस में वो कहते हैं जी ये तो इस अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो अब ये वो चीज़ें हैं जिसमें फिर बहस चलती है। वो कहते हैं जी कि नहीं, इस कानून के मुताबिक हमारा दायरा इख्तियार ये है, ये हम सुन सकते हैं और ये नहीं सुन सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अप्रेजल इसकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग में आएगी। और इस हवाले से मैंने इसलिए कहा था कि स्टैट्यूट समझने के लिए मेरा तरीका आज भी यही रहा है कि जब मुझे समझ नहीं आ रही होती तो मैं ज़रा गाइडेंस उधर से लेता हूँ कि क्या स्कीम क्या है स्टैट्यूट की, ये चाहता क्या है करना। हाँ, तो ये नहीं कि वो आपको सब कुछ बता देता है, लेकिन वो आपको एक स्ट्रक्चर दे देता है कि अच्छा ये करना क्या चाहता है लेजिस्लेटर यहाँ पर, और फिर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में प्लेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, कवानीन में अक्सर ये लिखा होगा जहाँ पे स्पेशलाइज्ड इदारे बन जाते हैं। अगेन कंपनी के हवाले से ले लेते हैं, SECP है, पहले वो बताते हैं जी ये इदारा होगा, इसका ये फंक्शन होगा, ये पावर होगी, ये इन लोगों पे मुश्तमिल होगा, ये इंक्वायरी कर सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या
اور کن معاملات میں یہ خود کر سکتا ہے, کن معاملات میں یہ ایف آئی اے نیب کو بھیج سکتا ہے. تو یہ آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی. اب فرض کریں آپ کے پاس ایک کیس ایسا آ جاتا ہے جو ایکچولی ریلیٹ تو کسی کمپنی سے کرتا ہے, لیکن وہ کمپنی لا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا کمپنی لا کا جو نظام بنایا ہوا ہے SECP کے تحت, وہ اس کے اندر نہیں آتا. تو پھر آپ اس کو پریس کرتے ہوئے یہی کہیں گے جی ہاں ہیں آپ کمپنی ہے یہ فلانے معاملے سے ریلیٹڈ, لیکن قانون کے مطابق SECP کو چاہیے کہ یہ معاملہ اس حد تک نہیں, باقی حد تک کسی کو یا وہ ریفر کر دے یا آپ کو ریلیف کے لیے کہیں اور چلا جانا چاہیے. اور یہ ہمارے ہاں اکثر پرابلم آج کل بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے لیگل سسٹم میں ریگولیٹری باڈیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے نہیں ہوتی تھی, اب ہر سیکٹر اپنے ایک ریگولیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں پر انکروچمنٹ ہے. کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے وہ ٹیلی کام والا بیٹھا ہوا کہتا ہے یہ میں نے کام کرنا تھا, وہ دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو میں کمپنی ریگولیٹ کر رہا ہوں, یہ میں کروں گا. تو یہ ایشوز بھی کھڑے ہو گئے, بٹ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں. تو آپ ٹیلی کام کا لا پڑھیں گے, آپ کمپنی کا لا پڑھیں گے, پھر دیکھیں گے جہاں پر پرابلم ایریا ہے وہ یہ ہے جہاں پر پینل کانسیکوینسز آ جاتے ہیں. ریگولیٹری کانٹیکسٹ میں میں بہت سمپل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. پینل کانسیکوینسز تو دو طرح کے ہی ہو سکتے ہیں, ایک ہے یا فائنز ہو سکتے ہیں, ایک ہے امپریزنمنٹ. تو رول براڈلی اسپیکنگ یہ ہے کہ جہاں پہ امپریزنمنٹ کا ایشو ہے وہ ٹرائبونلز نہیں کریں گے. یہ ٹرائبونلز یہ نا یہ ان کے اپنے بنے ہوئے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو ہمارے عدالتیں جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کورٹس وغیرہ ان کی نہیں, لیکن جہاں پر امپریزنمنٹ آ جاتی ہے دیٹ از اے فنکشن آف دا کورٹ. کیونکہ ہم جس ڈسپلن میں رہتے ہیں, ہم جس لیگل سسٹم میں رہتے ہیں, وہاں پہ کورٹس اپنی جیلسلی گارڈ کرتے ہیں jurisdiction in determining rights and obligations between parties on the civil side as well as the criminal side, جہاں پر کوئی penal consequence نہ آ رہا ہو. لیکن اس کا ایک کارو آؤٹ ہے. کئی ادارے اب اپنے ریگولیٹریز کے اوپر فائنز امپوز کریں, فائن بھی پینل ہے, لیکن آپ نے دیکھا نا کہ PPC میں بھی لکھا ہے امپریزنمنٹ اینڈ فائن اور بوتھ. اسی طرح باقی جو قوانین ہیں وہاں پر آپ کو جو کارپوریٹ سو کالڈ ریگولیٹ کر رہے ہیں, اکانومی کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ امپریزنمنٹ آپ کو نہیں ملے گی, وہاں پہ آپ کو فائنز ضرور مل جائیں گے. تو اگر آپ کو لگے گا کہ کوئی ایسا اوفینس ہو گیا ہے جس میں یو آر جمپنگ ٹو اے اسپیشلائزڈ کرمنل فیلڈ آف لا, پھر اس کا لا ٹریگر ہو جائے گا. اور یہی وہ اسیسمنٹ ہے جو ہمارے ایشوز کو ریلیونٹ لا میں رکھ کے ہم اینالائز کریں گے. کہ اب دیکھیں آج کل بہت بڑا ایگزامپل میں آپ کو چل رہا ہے کہ یہ جس طرح ہم رپورٹیں پڑھ رہے ہیں, جو نیب کام کرتا ہے کبھی کسی سیمنٹ والے کے پیچھے, کبھی کسی شوگر والے کے پیچھے, تو وہاں یہی کنفیوژن مچا رہتا ہے کہ بھائی یہ نیب نے کیا کرنا ہے, یہ SECP نے کیا کرنا ہے, کہ باقی اداروں نے کیا کرنا ہے. سو نیب کا اپنا ایک اسکوپ ہے. نیب کہتا ہے جی کہ سیکشن 9 کے تحت جو چیز فال کرے گی وہ ساری میں کر سکتا ہوں, یا میرے شیڈیول 10 شیڈیول کے اندر جو 10 ہے اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. 10 نہیں ہے سوری, جو اس کا شیڈیول میں اوفینسز ہے 10A کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, تو وہ اس میں تو وہ ایریا ہے جس پہ نیب آپریٹ کرے گا. اسی طرح FIA کا اپنا قانون ہے, اس کا ایک تفصیل دے دی گئی ہے جدھر اس کی جورسڈکشن ہے, اور یہ اوور لیپ کرتے رہتے ہیں. بٹ جہاں پر امپریزنمنٹ موسٹ لائکلی از دا کانسیکوینس, وی ول ہیو ٹو گیو وے ٹو such agencies. تو سر بیسکلی جہاں پہ اسٹینڈرڈ آف پروف شفٹ کرے گا فرام سول ٹو کرمنل, کیونکہ کرمنل میں دیر از بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ والی چیز چل جائے گی, وہاں پہ جورسڈکشن شفٹ کر جائے گی. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں پر اوفینس ایسا ہوگا جو کہ ٹرائبل بائی اے اسپیشلائزڈ باڈی لائک نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اینڈ ادرز ہے, وہاں پر وہ کورٹ اپنی جورسڈکشن لے گا. لیکن یہ کیونکہ ایک ہی ایشو پہ 2 عدالتیں تو نہیں چل سکتی نا, لیکن کچھ معاملات کمپنی کے حوالے سے ایسے ہوتے ہیں کہ فرض کریں اگر ایک ڈائریکٹر کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ اس نے ایک انلیگل کوئی کام کیا ہے, ٹیک ایگزامپل سیکشن 9 کی برائب ہے واٹ ایور, سو اس حد تک نیب کورٹ اس کو ٹرائی کرے گا, اپنے جو بھی کرمنل پروسیجر لا کے تقاضے پورے کرتے ٹرائی کرے. لیکن اس کا ایک اوور لیپ کمپنی لا کے اوپر بھی ہے. کمپنی لا یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی, فار ایگزامپل دے رہا ہوں, کہ کوئی ایسا آدمی ڈائریکٹر کمپنی کا نہیں بن سکتا جس کی جو ہیز بین گلٹی آف این اوفینس فار ایگزامپل. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اگر یہ فائنڈنگ ہوتی ہے تو میں اور آپ کو مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو پرسن ہیز بین کنوکٹڈ آف این اوفینس, ہی از انسوٹیبل ٹو بی اے ڈائریکٹر,
اس کے بیسس کے اوپر میں SECP کے میکنزم کے اندر, ایڈمنسٹریشن کے میکنزم کے اندر جا کے شکایت کر سکتا ہوں کہ جی اس آدمی کو ڈائریکٹر نہیں ہونا چاہیے, تو وہ اس کو ہٹانے کے لیے کارروائی کر سکتا ہے. سو یہ ایسا I don't know کہ میں آپ کو صحیح ایکسپلین کر پایا ہوں. اچھا یہاں پہ اگر فار ایگزامپل جہاں پہ ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ سول اینڈ کرمنل سائملٹینیسلی ہو, تو اس میں پہلے کون سا چلے گا, پہلے ڈٹرمنیشن کس کی ہونی چاہیے؟ یہ تو $1 million کوسچن ہے.